Good morning, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. As you all know that we were discussing about transmission media in the previous class, and I gave you some brief of transmission media in the last class as well. So we can revise all those concepts once again. The transmission media means in which data is transferring from sender to receiver. Basically, we divide the transmission media into two parts, guided and unguided. In a simple manner, we can say that guided are the wired medium and unguided are the wireless medium. And we divide our guided medium into three basic cables. First is called twisted pair cable, second is coaxial cable, and the third one is optical fiber cable. And today we will discuss about guided media used in networking. So first cable is twisted pair cable. It is also known as Ethernet cable or LAN cable. The speed of Ethernet cable is of 10 Mbps to 100 Mbps or higher. So the another name of twisted pair cable is Ethernet cable or LAN cable. It is the most widely used cable among all three. And there are two or four insulated wires wrapped together and twisted around each other. So here in this diagram you can see that there are cables and which are twisted to each other, and there are one, two, three, four set of cables which are twisted together. Why we twist these cable? Because twisting resist the effects of surrounding noise or electromagnetic interference. Okay, in my previous class I have told you that कि जो वायर्ड मीडियम होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की, और जो उसकी सराउंडिंग में नॉइज चल रही है वो क्या करती हैं, सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती हैं. तो टू अवॉइड या टू रिड्यूस दैट प्रॉब्लम व्हाट वी डू, वी ट्विस्ट द केबल. सो उनको ट्विस्ट करने से क्या होता है कि ये जो सराउंडिंग में नॉइज आ रहा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसको क्या किया जाता है, मिनिमाइज कर लिया जाता है बाय यूजिंग दैट टेक्निक. And that's why the name of this cable is twisted pair cable, because we are twisting the cable. Okay, and RJ45 connector is used to connect computers. We will see what is RJ45 in the later slides. So full form of RJ45 is register jack. एंड ये जो लैन केबल होती हैं ये किस पे कनेक्ट होती हैं, जनरली आपके इसी RJ45 कनेक्टर में कनेक्ट होती हैं. तो 1 मार्क्स क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन कि which the name of the connector in which LAN cable are connected, then that connector will be RJ45 connector. Now basically we divide the LAN cables into two parts, Cat5 and Cat6, and when Cat7 is also the latest one. Cat5 and Cat6, Cat7, all these are the specification of twisted pair cables and are generally used in LAN, whereas lower category of twisted pair cables are used in telephone connections. Okay, in the telephone lines जो आपने देखा होगा जो BSNL की लाइन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करती हैं. एंड जो लैन केबल्स होती हैं उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं, Cat5, Cat6, Cat7. जनरली दे आर गुड इन क्वालिटी, एंड जो जिनकी लेस क्वालिटी होती है जनरली वो टेलीफोन कनेक्शन में यूज़ होती हैं. बट नाउ अ डेज स्लोली व्हाट इज हैपनिंग कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल की जगह क्या हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल इनको रिप्लेस करती हुई आपको दिख जाएंगी.
It is further divided into two categories: unshielded twisted pair and shielded twisted pair. Shielded twisted pair cable remains covered with insulation to reduce the signal interference. So here you can see that यहाँ पर आपको इस तरह से, अगर आप इस इमेज को गौर से देखोगे तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है ऑफ शील्ड. ओके, सो एज अ नेम सजेस्ट, shielded twisted pair, it have the extra shield, that's why it is called the shielded twisted pair cable. and जिनमें shield नहीं होगी, that is called unshielded twisted pair. Now some advantage of twisted pair cables are: they are cheap, they are lightweighted, they are flexible, they are easy to install and maintain. The disadvantage is the distance. It does not carry the larger distance, and there is a lot of electromagnetic interference also, and it support low bandwidth with a speed of up to 100 mbps. Okay, the speed is a factor, and the second is electromagnetic interference is also a huge factor in the twisted pair cable. And अगर हमें लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसको यूज करना हो तो वी विल यूज दी रिपीटर, because repeater is used to regenerate the signal, and after some time when सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ को खोने लगता है तो हम रिपीटर लगा के उसकी सिग्नल को रीजनरेट कर लेते हैं, और उस तरह से क्या होता है, हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. ओके, सो हियर यू इन दिस डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल होगा कि अनशील्डेड एंड शील्डेड में डिफरेंस क्या है. यहाँ पर आपको एडिशनल जो है शील्ड देखने को मिल रही होगी. नाउ ईथरनेट केबल, दैट यू कैन सी दैट ये केबल आपने देखी होगी. दिस इज दी लैन केबल भी बोल सकते हैं, ईथरनेट केबल भी हम बोल सकते हैं. ओके, तो वो आपकी इस तरह की होती है. देन दिस इज कॉल्ड दी RJ45 कनेक्टर. ओके, ये RJ45 कनेक्टर है इस तरह से. यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो RJ45 कनेक्टर. और ये कहाँ पर कनेक्ट होता है, यहाँ पर कनेक्ट होता है. ये पोर्ट है, ये क्या है, RJ45 पोर्ट, ये वाला इस पोर्ट में आपको कनेक्ट होता है. ओके, नाउ शील्डेड एंड अनशील्डेड, यहाँ पर ये आपको एडिशनली ये लेयर जो देखने को मिल रही है, ये इसको क्या करती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर बना देती है. ओके, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शील्डेड एंड अनशील्डेड इज क्लियरली विजिबल हियर. बेसिकली आउटर सेल्थ जो होती है वो सभी में होती है. ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपकी शील्डेड है, ये आपकी अनशील्डेड है. यहाँ पर आपको ये टिन कॉपर जो दिख रहा है अलग से ये देखने को मिल रहा है. इंडिविजुअल शील्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है. बाकी यहाँ पर ये दीज आर दी कॉपर वायर्स, एंड यहाँ पर सेपरेटर आप यूज़ होता है बिकॉज यहाँ पर हम UTP में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस करने हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दैट सेपरेटर वी कैन यूज़. बट बेसिक ओवरऑल डायग्राम की अगर हम बात करें तो वी विल मेक द आउटर शील्ड, देन वी विल मेक द इनर शील्ड, देन यहाँ पर हम इनको ट्विस्ट करेंगे. और यहाँ पर जो वायर यूज़ होती हैं वो कॉपर होती हैं, जो कि ट्विस्टेड की फॉर्म में आपकी होती है. कोएक्सियल केबल, और इन शॉर्ट वी कैन से कोएक्स. जो कोएक्सियल केबल है उसका बहुत जनरल यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में देखोगे अपने घर में. इन योर केबल टीवी, जो आपकी केबल टीवी, जो आपका जो सेटअप बॉक्स होता है या आपका जो डिश टीवी होती है, वो जो कनेक्ट होती है आपके सेटअप बॉक्स से, वो जो केबल आप यूज़ करते हैं उस मैकेनिज्म के लिए, वो कौन सी होती है, कोएक्सियल केबल होती है. यू विल सी इन द डायग्राम, अगर मैं इसको थोड़ा लार्ज कर दूं तो दिस इज द डायग्राम ऑफ कोएक्सियल केबल. ठीक है, ये इस तरह की केबल आप अपने घर में देखोगे जब आप अपना सेटअप बॉक्स चेक करोगे. सेटअप बॉक्स से जो केबल कनेक्ट होती है कुछ इस तरह की होती है. ओके, जिसमें क्या होता है कि आपके सबसे इनर साइड में एक कॉपर वायर होती है दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट दी सिग्नल, और इस कॉपर वायर के आउटर साइड में एक इंसुलेशन लगा हुआ होता है जो कि इस कॉपर वायर को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, और उसके बाहर आपकी क्या होती है, कॉपर के मैश होते हैं. ये भी क्या होता है, आपका एक इंसुलेशन पार्ट होता है. ठीक है, ये एक प्लास्टिक की कोट होती है. ठीक है, आप ये जो देख रहे हैं दिस इज अ प्लास्टिक कोट. ठीक, बट उसके
आउटर साइड से क्या होती है, कॉपर की मैश लगी होती है। ओके, और ये भी क्या होता है, एक टाइप का इंसुलेटर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका कंडक्टर हो गया। ओके, और ये आपका इंसुलेटर हो गया। तो बिकॉज इसमें कॉपर की मैश लगी है तो ये भी क्या होगा, आपका आउटर कंडक्टर हो गया। तो ये आपका इनर कंडक्टर बोल सकते हैं, ये आपका आउटर कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका, इन दोनों के बीच में क्या है, एक इंसुलेशन है। और एक बाहर से भी आपका एक और क्या होता है, आपका इंसुलेशन होता है, जो कि आपको इस केबल को प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ कोएक्सियल केबल। तो इसमें क्या हो गया, पहले आपका इनर कंडक्टर हो गया, फिर आपका इंसुलेटर हो गया, फिर आपका आउटर कंडक्टर हो गया, फिर एक बाहर से आपका एक जैकेट होती है जो क्या करती है, इस पूरी केबल को प्रोटेक्ट करती है, वो भी क्या होती है, इंसुलेशन करती है। ओके, नाउ इसको कोएक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका जो इनर कंडक्टर है और जो आउटर कंडक्टर है वो क्या होती हैं, दोनों क्या करती हैं, कॉमन एक्सेस शेयर करते हैं। ठीक है, बोथ आर एट कॉमन एक्सेस, दोनों क्या होते हैं, कॉमन एक्सेस को शेयर करती है। ठीक है, और जनरली कहाँ पर आप यूज देखते हो, अपना टीवी ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। और ये जो केबल होती है जिस कनेक्टर से कनेक्ट होती है, जैसे आपकी हमने देखा था ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट होती थी, जो कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। और इन द सेम वे जो आपका कोएक्सियल केबल होती है वो किस में होती है, आपकी BNC कनेक्टर से कनेक्ट होती है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस होते हैं, ये जो केबल होती है ये आपकी कंपैरेटिवली फास्ट होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से, और ये हाई बैंडविड्थ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपके घर में विदाउट एनी डिले एक हाई क्वालिटी में क्या होता है, आपकी एक वीडियो चल रही है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि आपके घर में जो केबल टीवी, ये जो कोएक्सियल केबल आप यूज़ कर रहे हो उसकी स्पीड कितनी होती है। ठीक है, और ये इसकी जो डिस्टेंस होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, ज़्यादा होती है, लार्जर डिस्टेंस को कवर कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर कर सकती है अप टू 185 से 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकती है, जो कि ट्विस्टेड पेयर केबल में ओनली 100 मीटर्स था। ठीक है, अब ये जनरली यूज होती है फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, जनरली फॉर केबल टीवी नेटवर्क। ठीक है, और इसमें एक और बेनिफिट है कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए क्या होती है, लेस सेंसिटिव होती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो हमारा जो डेटा को हार्म हो रहा था या डेटा आपका डिसऑर्टेड हो रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा, वो डिसऑर्टेड नहीं होगा। ठीक है, जो इसमें क्रॉस टॉक नहीं होगी, और क्या होगा, इसमें सिग्नल आपका विदाउट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा, जो कि आपका ट्विस्टेड पेयर केबल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जो कि आपको कोएक्सियल केबल में बहुत कम देखने को मिलता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये केबल आपकी बहुत कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये केबल बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अब अपने घर में जो केबल टीवी की वायर है, अगर आप उसको हल्का सा उसको आप मोड़ने का ट्राई करोगे तो देखोगे कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, और बहुत ज़्यादा क्या है, आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती कोएक्सियल केबल। और इंस्टॉलेशन इज नॉट इजी ड्यू टू थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर और पुअर फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैं अभी बता चुका हूँ कि फ्लेक्सिबल ये केबल बिल्कुल नहीं होती। और ये तो थर्ड डिसएडवांटेज है इसका कि ये जो केबल है वो कंपैटिबल नहीं होती है ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ पार्ट में ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर लो, कुछ पार्ट में आप कोएक्सियल यूज़ कर लो, या तो आपका जो नेटवर्क होगा वो पूरा का पूरा ट्विस्टेड पेयर केबल वाला होगा, या आपका पूरा का पूरा क्या होगा, कोएक्सियल वाला होगा। आप दोनों केबल को कंबाइन नहीं कर सकते, दोनों केबल को साथ में यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल। नाउ our next and the most important cable is फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये तीनों केबल में सबसे बेस्ट होती है और सबसे फास्ट केबल आपकी होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब इसमें देखो नाम ही बता रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें ऑप्टिकल मीन्स लाइट और फाइबर मीन्स थ्रेड, मतलब एक धागा टाइप। तो इसमें क्या होता है कि एक कोर होता है जो कि आपका एक बिल्कुल थ्रेड की तरह बहुत पतला होता है, 1 mm और 2 mm उस कोर का साइज होता है। आप एक कंसीडर कर सकते हो जो कि आपका सिंगल हेयर का जो आपकी थिकनेस होगी वो थिकनेस आपकी कोर की होती है। ओके, तो मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा लाइट कर बड़ा कर दूं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कोएक्सियल आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल
इसमें ये जो कोर है ये आपकी ग्लास की होती है, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है। आप 1 mm 2 mm इसकी थिकनेस होती है। आप अपने नॉर्मल एक बाल को कंसिडर कर सकते हो कि ये इतनी थिक होती है, ठीक है। अब इस जो कोर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर साइड में क्लैडिंग लगी होती है, ठीक है, और उसके आउटर साइड में कोटिंग होती है, और उसके आउटर साइड में भी एक आपका स्ट्रेंथ मेंबर होता है, और आपकी एक आउटर जैकेट होती है। मींस ऑल इन ऑल जो मेन पर्पस है वो क्या है, आपका कोर का है। एक ग्लास की कोर होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लैडिंग यूज करते हैं आपकी, फिर हम उसकी कोटिंग यूज करते हैं, फिर हम स्ट्रेंथ मेंबर यूज करेंगे, फिर हम आउटर जैकेट यूज करेंगे। अल्टीमेटली जो आपका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ 1 mm की जो आपकी कोर है उसमें डेटा ट्रांसफर हो रही है। बाकी सारी जो आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, क्लैडिंग यूज कर रहे हो, या आप कोटिंग यूज कर रहे हो, या स्ट्रेंथ मेंबर यूज कर रहे हो, या आउटर जैकेट कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, आपके इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ठीक है, अब ये जो मेनली जो आपका जो ये वर्क करती है, ये जो वो वर्क करते हैं कॉन्सेप्ट में रिफ्लेक्शन पे। अब एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें जो आपका जो कोर है, ठीक है, जो कि ग्लास की बनी हुई है, हम क्या करते हैं, इसमें लाइट ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल मीन्स लाइट। इसमें जो डेटा ट्रैवल करता है वो लाइट की फॉर्म में करता है, बट यहाँ पर लाइट जो होती है हमें एक स्ट्रेट फॉर्म, बिल्कुल स्ट्रेट लाइट ट्रैवल नहीं करती। लाइट क्या करती है, आपकी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। आपकी आप यहाँ पर देखो, ये जो आपकी ग्लास में जो आपकी लाइट होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। पहले वो लाइट ऐसे जाएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर आपकी फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से वो जो लाइट होती है वो स्ट्रेट फॉर्म में ना जाके एक क्या क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हुए जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या है कि ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो आपके कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है, क्योंकि जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होके जाती है, ठीक है। इट हैज अ ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर आपका जो सिग्नल कैरी करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट। सिग्नल आर टू बी इमिटेड बाय एलईडी जो लाइट होती है, और लेजर बीम टू सोर्स। अब वो आपकी एलईडी लाइट भी हो सकती है और लेजर बीम भी हो सकती है, ओके। अब इसमें जो पार्ट है आपका जो कोर होता है, जो कोर आपका एक थिन ग्लास की रॉड होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके सिग्नल्स जो होते हैं लाइट की फॉर्म में वो ट्रैवल करते हैं। इसके आउटर साइड में क्लाइडिंग लगी होती है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके ग्लास की अगर अगर ग्लास के आप अंदर लाइट को ट्रैवल करोगे तो, और लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ग्लास तो क्या करेगा, उस लाइट को बाहर सेंड कर देगा, ठीक है। तो जो क्लैडिंग होती है वो क्या करती है, जो आपका जो लाइट है वो आपकी उस ग्लास से बाहर नहीं निकलती है, वो क्या होती है, उस ग्लास के अंदर ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती जाती है। वो क्या करते हैं, वो जो आपका लाइट उस ग्लास से बाहर ना निकले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, क्लैडिंग की होती है, ठीक है। इट इज एन ऑप्टिकल मटेरियल कवरिंग द कोर दैट ट्रांसफॉर्म द लाइट एंड सेंड इट बैक टू द कोर। अब जो क्या करती है, जो भी लाइट आपकी बाहर निकल रही है वो क्लैडिंग से टकरा के दोबारा किस पे आ जाती है, कोर पे आ जाती है। तो क्लैडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपकी लाइट है वो आपकी ग्लास से बाहर ना जाए, ठीक है। उसके बाहर जो बफर कोटिंग होती है वो आपकी पीवीसी की होती है, ठीक है, जो कि आपका एक बहुत ही अच्छा प्लास्टिक का एक फॉर्म है जो कि प्रिवेंट करती है आपकी उस केबल को, ठीक है। बफर कोटिंग होती है, उसके बाद जो आउटर जैकेट होती है वो भी क्या करती है, आपकी उसको प्रोटेक्ट करनी है। और इसका जो बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये फ्री होती है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी वायर यूज कर ही नहीं रहे हो, इसमें जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो लाइट की फॉर्म में हो रहा है, कोई आपकी वायर में डेटा ट्रैवल हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है, ओके। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, सबसे फास्ट होती है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकती है। आप ये मान के चलो कि एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करते हैं। आपकी जो पूरे के पूरे जो सी लेवल पे ऑप्टिकल के फाइबर केबल का एक जाल बिछा हुआ है, जिसके थ्रू आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट आप डेटा ट्रैवल करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। बट इसका जो डिसएडवांटेज है, ये बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्टली होती है पहली बात, और सेकंड थिंग ये बहुत ज़्यादा आपकी फ्रेजाइल होती है। आप बिल्कुल भी आप इसको मोड़ नहीं सकते, बिकॉज इसमें जो एक्चुअली जो ग्लास की कोड होती है, आप ग्लास को जैसे ही मोड़ोगे वो टूट जाएगा।
तो इसको आप बहुत ज़्यादा टफ होता है इसका इंस्टॉलेशन, बिकॉज आप इसको मोड़ नहीं सकते इजीली, आप इसको और कहीं कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज बाकी केबल वायर्स पे काम कर रही हैं, ये केबल आपकी लाइट पे काम कर रही है। तो इसका जो इंस्टॉलेशन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्टली केबल है। तो जनरली आप आज की डेट में सुनते हो जियो फाइबर, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में पीलीभीत में। तो वो जियो फाइबर एक्चुअल में क्या है, यही आपका एक फाइबर कनेक्शन है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, वन ऑफ द बेस्ट केबल among all three, but this is very expensive and the installation of that cable is also very difficult, and the fiber optical cable works on the concept of total internal reflection. And what we are doing in optical fiber cable, we are sending a data in the core which is made of glass, and we are sending the light in between that core, but we are not sending the straight beam of light. We are sending the light in form of reflection, and the light is reflecting, and by doing that reflection it will travel the more distance at compared to the straight line. So this is all about the optical fiber cable and coaxial cable. So that's it for today, students. Thank you and keep learning.